السلام علیکم۔ ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ حسنین کے آفس جانے کے بعد اس نے دروازہ اچھی طرح لاک کیا اور ایک گہرا سانس فضا میں خارج کرتی ہوئی ٹی وی لاؤنج کی جانب چلی آئی۔ پھر صوفے پہ بیٹھتے ایک نظر سامنے لگی وال کلاک پر دوڑائی، پھر تیزی سے اپنی انگلیوں کو حرکت دیتے ریموٹ کی مدد سے اپنا مطلوبہ چینل لگایا، جہاں پر اس کا من پسند مارننگ شو اس کی توجہ کا مرکز بنا۔ اس کے لبوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ بھی کھیل گیا۔ عمیر کے اسکول اور حسنین کے آفس جانے کے بعد وہ ایسے ہی بے فکری سے اپنی زندگی جیا کرتی تھی۔ پورا گھر اس کی بد سلیقگی پھوہڑ پن کی بدولت اس وقت ابتری کا شکار تھا۔ اپنی سست و طبیعت اور کچھ حسنین کی اچھی تنخواہ کے بلبوتے پر اس نے گھر کی صفائی ستھرائی اور چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ایک عدد ملازمہ رکھی ہوئی تھی، جس کے آنے جانے کے اوقات اور کام کرنے کے طریقے سے اسے کوئی سروکار نہ تھا۔ اسے تو فقط اس سے مطلب تھا کہ اسے صفائی کرنا پڑتی تھی، نہ برتن دھو کے اپنے گداز ہاتھ خراب کرنے پڑتے تھے۔ کچھ اضافی پیسے دیکھ کر وہ اسی ملازمہ سے کپڑے وغیرہ بھی دھلوایا کرتی تھی۔ صرف کھانے پکانے کی ذمہ داری اس پہ عائد تھی، وہ بھی اس سبب کہ حسنین کو گھر کا پکا کھانے کی عادت تھی۔ ملازمین کے ہاتھ کا کھانا نہ اس نے کبھی کھایا تھا، نہ اسے پسند تھا۔ اس کے آفس جانے کے بعد وہ اپنے من پسند پروگرامز دیکھتی اور دوستوں سے گپ شپ کرتی، نہ صرف ملازمہ کو گھر کی صفائی کا موقع دیتی بلکہ اس کا 4 سالہ بیٹا عمیر بھی بے توجہی کا شکار ہوتا، اپنے کول میں سمٹتا جا رہا تھا، اور اس بات کی علینا کو ذرہ برابر پرواہ نہ تھی۔ کچھ لوگوں کے لیے شاید اپنی ذات اور اپنا مفاد ہی سب کچھ ہوتا ہے، یا پھر وہ شاید وقت کے ہاتھوں ٹھوکر لگنے کے منتظر ہوتے ہیں۔ علینا اس وقت موبائل فون کان سے لگائی اپنی سہیلی سے باتوں میں مصروف تھی جب اس کی ملازمہ سکینہ صفائی کرتی اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ باجی، میرے بیٹے کی کل رات سے طبیعت بہت خراب ہے، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ ڈاکٹر کو دکھاؤں، تنخواہ ملنے میں بھی 15-20 دن ہیں، تو اگر آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں اور میری مدد کر دیں۔ اسے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا، پھر ردا کو خدا حافظ کہہ کے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ابھی کچھ دن پہلے تو تمہارے شوہر کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور اب تمہارے بیٹے کی، دیکھو اس طرح کیسے چلے گا سکینہ؟ پہلی بار علینا ذرا سخت لہجے میں ملازمہ سے مخاطب ہوئی تھی، ورنہ تو اسے کوئی سروکار نہ تھا، وہ جھٹ پیسے نکال کے دے دیتی تھی، مگر یہ اس کی دوست ردا کے سمجھانے کا ہی اثر تھا کہ اب وہ تھوڑا سختی سے کام لے رہی تھی۔ بقول ردا کے ملازمین پر اس طرح اندھا اعتماد کر کے ان پر اپنی محنت کی کمائی نہیں لٹانی چاہیے۔ بی بی جی، مصیبت اور بیماری کا کب پتہ چلتا ہے کب آ جائیں؟ اب انسان جہاں کام کرتا ہے وہاں اپنے مالک سے ہی مدد مانگے گا نا۔ کمال مہارت سے اس نے آنکھوں میں دھول جھونکی تھی اور علینا صدا کی بے وقوف اس کی باتوں میں آ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فوراً ہی ڈھیلی پڑ گئی۔ دراصل وہ لاکھ سست اور بد سلیقہ سے ہی لیکن دل کی بہت فراخ اور نرم تھی، صرف اپنی ذات پر دل کھول کے خرچ نہیں کرتی تھی بلکہ سہیلیوں اور عزیز و اقارب بھی اس کی فراخ دلی سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتے تھے، اور وہ اپنے نقصان سے بے خبر اپنی دھن میں جیے جاتی، اور کوئی بزرگ نما اس کے پاس رشتہ تھا نہیں جو اسے روک ٹوک کرتا۔ اچھا لو، یہ پیسے رکھو اور اپنے بیٹے کا صحیح سے علاج کرانا۔ اپنے والیٹ سے 500 کے 4 نوٹ نکال کر اسے سکینہ کی جانب بڑھائے، پھر فون نکال کے دوبارہ ردا کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ شام کو حسنین غائب دماغی سے کھانا کھا رہے تھے تو علینا نے ان کی جانب پھر ڈش کی، سالن ان کی پلیٹ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ نہیں نہیں، بس میں اور نہیں لوں گا۔ کیا ہوا، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ مٹر کڑھائی تو ویسے بھی آپ کی فیوریٹ ہے، آج آفس کالیگ کے ساتھ ڈنر کیا تھا، بھوک نہیں؟ حسنین نے کھانے سے فوراً ہاتھ کھینچا۔ علینا نے تشویش سے اسے دیکھا، یہ پہلا موقع تھا کہ حسنین یوں بے دلی سے کھانا کھا رہے تھے، ورنہ تو وہ ہمیشہ ہی گھر پہ کھانے کو ترجیح دیتے تھے۔ ایسے میں علینا کی پریشانی بجا تھی۔ آپ نے کب سے باہر کھانا شروع کر دیا؟ میں بھی نہیں کھا رہی اب۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ بس ایک فرینڈ تھا، ضد کر رہا تھا
سو کھا لیا. تم پلیز ٹھیک سے ڈنر کرو اور عمیر کو بھی کراؤ. میری کافی پھر روم میں ہی بھجوا دینا. اپنا موبائل اٹھا کے وہ اسے حیران کرتا ہوا اپنے روم میں چلا گیا. علینا کے لیے اس کی بے دلی اور رویہ آج بالکل نیا تھا. عمیر بھی سب چھوڑ کے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا. جو بھی تھا جیسا بھی تھا مگر حسنین سے وہ بہت محبت کرتی تھی. یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی پسند کے مطابق نہایت مزیدار کھانے بناتی تھی اور آج اس کے رویے سے بہت دل برداشتہ اور حیران تھی. حسنین کے لیے اس نے نئی سے نئی ڈشز بنانی سیکھی تھی. بیٹا کھانا کھا لیا؟ چلو میں آپ کا دودھ لے کر آتی ہوں. عمیر کو پیار کر کے وہ کچن کی جانب چلی آئی تھی. دل ابھی بھی سوچوں اور الجھنوں کے بھنور میں الجھا ہوا تھا. اور پھر عمیر کو سلا کے اور حسنین کے لیے کافی بنا کے جب وہ اپنے روم میں آئی تو وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ مصروف تھے. یہ کافی لیں. آج کچھ زیادہ ہی کام ہے کیا جو ابھی بھی لیپ ٹاپ کھولے بیٹھے ہیں آپ؟ علینا نے کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے استفسار کیا. حسنین کو یوں رات گئے تک مصروف دیکھ کر اسے کچھ حیرت ہوئی تھی ورنہ وہ ہمیشہ ہی فارغ بیٹھے اس کا انتظار کر رہے ہوتے تھے. ہاں بس ایک دو فائلز چیک کرنی ہے. تم سو جاؤ تھک گئی ہوگی. حسنین نے بنا اس کی جانب دیکھے جواب دیا. اس کی حد درجہ مصروفیت اور بیگانگی علینا کو ایک آنکھ نہ بھائی تھی. جواباً اس نے فوراً اشتعال میں آ کے حسنین کے آگے سے لیپ ٹاپ کھینچا تھا مگر اگلے ہی پل وہ ساکت رہ گئی تھی. اسکرین پہ جگمگاتی حسنین کی فیس بک پروفائل نے اسے حقیقتاً دکھ سے دو چار کیا. تو یہ تھا آپ کا ضروری کام؟ میں سارا دن بور ہوتی آپ کا انتظار کرتی رہتی ہوں اور رات کے اس پہر میں آپ کے لیے یہ فضول سی فیس بک یوز کرنا زیادہ ضروری ہے. پلیز علینا میں صرف ان باکس میں اپنے باس کے میسیجز وغیرہ چیک کر رہا تھا. تم کیوں بلا وجہ اتنا ہائپر ہو رہی ہو؟ اپنی صفائی دیتے ہوئے حسنین نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا. وہ ایسی ہی تھی اس کے معاملے میں، اس کی محبت میں حد سے زیادہ پوزیسو اور حساس. اچھا نا آئی ایم سوری پلیز یہ کافی پی لیں اب ٹھنڈی ہو رہی ہے. اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اس نے فوراً مگ اٹھا کے حسنین کی جانب بڑھایا جسے اس نے بغور دیکھتے ہوئے تھاما. صحیح صفائی نہ ملنے کے باعث مگ کی چمک کافی مان پڑ گئی تھی اور وہ دھلا ہوا بھی صحیح نہیں تھا جبکہ حسنین بلا کے نفاست پسند انسان تھے. مگ کے کناروں پر عجیب طرح کے داغ پڑے ہوئے تھے جس سے انہیں کوفت محسوس ہوئی. اس وقت انہیں علینا کو ٹوکنا مناسب نہ لگا. سوچ چک کر کے کافی کے سپ لینے لگے مگر دل میں دکھ اور درد کی ایک لہر سرایت کر گئی. ممی اس ویکینڈ پہ ہم دادی جان کے ہاں چلیں گے. آج صبح سینڈوچ اور جوس سے لطف اندوز ہوتے عمیر کی بات جیسے اس کی سماعتوں میں زہر کی طرح اتری تھی. بیٹا دادی کے ہاں نہیں، اس ویکینڈ پہ ہم ماموں کے ہاں چلیں گے، وہاں پر بہت انجوائے کرتے ہیں نا آپ. اپنی دانش نے اس نے عمیر کو بہلانا چاہا تھا مگر بچے جب ضد پہ اڑ جاتے ہیں تو آسانی سے نہیں بہلا کرتے. نہیں نہیں مجھے دادی کے گھر جانا ہے. بس ماموں کے ہاں تو ہم لاسٹ ویکینڈ پر بھی گئے تھے نا، اتنے دن ہو گئے ہیں دادی کے ہاں گئے، مجھے وہیں جانا ہے. بیٹا ضد نہیں کرتے، میں نے کہا نا ابھی پہلے ماموں کے ہاں جائیں گے، آپ جلدی سے یہ دودھ پیو. اس نے اسے ٹوکتے ہوئے گلاس اس کی جانب بڑھایا. نہیں پینا مجھے کچھ بھی. غصے سے ٹیبل پہ ہاتھ مارتا ہوا عمیر فوراً کھڑا ہو گیا. کیوں نہیں پینا دودھ میرے شہزادے کو؟ آپ یہ دودھ بھی پیو گے جلدی سے اور پھر ہم لوگ تیار ہو کر دادی کے ہاں بھی ضرور جائیں گے. کب سے خاموش تماشائی بنے حسنین آخرکار بول ہی پڑے. یاہو بابا از گریٹ، لو یو ا لاٹ. فرتے جذبات سے عمیر نے فوراً حسنین کو گلے لگا لیا جبکہ علینا خراب موڈ کے ساتھ حسنین کو گھور رہی تھی. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عمیر سے؟ میں نہیں جاؤں گی وہاں. عمیر اس سے الگ ہوا تو اس نے فوراً حسنین کو جا لیا. تم جاؤ گی اور ضرور جاؤ گی، اب میں کچھ نہیں سنوں گا. تم اس طرح میرے بیٹے کو اس کے دادا دادی سے الگ نہیں رکھ سکتی. وہ بھلا کب اس لہجے اور سختی کی عادی تھی. اس کے لیے تو حسنین کا اس کی اس بات سے انکاری ہونا ہی شدید ترین جھٹکا تھا. حسنین آپ یہ کس طرح بات کر رہے ہیں؟ علینا پلیز مجھے تم نے مجبور کیا ہے، تم بھی پلیز میرے گھر والوں کے ساتھ اپنا رویہ درست کرو. تو مجھے کوئی ضرورت نہیں اس طرح بات کرنے کی. قدر نرم لہجے میں اسے سمجھاتے ہوئے وہ اپنی فائلز وغیرہ اٹھا کر کمرے کی طرف چلے گئے.
उमैर को नाश्ता करवाने के वक्त फिर अलीना हसनैन के रवैये की सख्ती पर ही गौर करती हुई शिकस्त खुर्दा सी बैठी थी। कुछ लोगों के लिए उनकी ख्वाहिशात, उनकी ज़ात और उनकी तरजीहात ही सब कुछ होती हैं। वो लोग किसी न किसी तरह हालात में गुजारा तो कर लेते हैं, कभी कभार समझौता भी कर लेते हैं, लेकिन अपनी ज़ात में तब्दीली लाना पसंद नहीं करते। मखसूस औकात में से कुछ वक्त वो अपनी बेज़र ख्वाहिशात के लिए ज़रूर निकाल लेते हैं। अलीना का शुमार भी उन्हीं लोगों में होता था। वो अलीमुद्दीन और वजिया अलीमुद्दीन की इकलौती बेटी और शमशाद हुसैन की इकलौती बहन थी। बेजलाड प्यार ने उसे बदतमीज़ ना सही, मगर खुद सर और सुस्त रो कामचोर ज़रूर बना दिया था। वो आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर छोड़ने वाले लोगों में से थी। पढ़ाई से भी उसे कोई ख़ास दिलचस्पी ना थी। दिलचस्पी थी तो बस फैशन में। खुदा ने उसे बेपनाह हुस्न से तो नवाजा था, मगर पुरकशी शख्सियत ज़रूरी थी। खासकर उसे बनने संवरने का सलीका ज़रूर आता था। यही वजह थी कि जब शमशाद हुसैन के करीबी दोस्त हसनैन ने उसे पहली दफ़ा देखा तो पहली ही मुलाकात में उसका गर्विदा हो बैठा, और यूं वो ग्रेजुएशन से फारिग होते ही दोनों ख़ानदानों की बाहमी रजामंदी से हसनैन के संग रुखसत होकर उसके घर आ गई। मर्दाना वजाहत और पुरकशी से हसनैन से उसे बेहद मोहब्बत हो गई। शुरू के दिन तो खुशियों के हंडोले में झूलते गुजर गए, फिर जब जिम्मेदारी की बात आई तो रफ्ता रफ्ता हसनैन और उसके घर वालों पर अलीना की काहली और काम चोरी आश्कार होती चली गई। हुसैन जो कि अहमद अली और रिफत का सबसे बड़ा बेटा, उसके बाद उनका एक और बेटा इखलाक और एक बेटी हिरा थी। अलीना को तो इतनी छोटी सी ससुराल भी भरे पूरे घर की माने लगती थी। उसे कदम कदम पर यहाँ बेजा पाबंदियाँ और बुराइयाँ नजर आती थी। मिसाल के तौर पर अलग सुबह उठना, नाश्ता बनाना, घर की सफाई सुथराई करना। अपने घर में तो वो कोई काम ना करती थी। उसकी वालिदा और भाई ने उसकी तमाम आदतें खराब कर रखी थी। यही वजह थी कि रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़ों और बहसों मुबाहिसों से तंग आकर हसनैन उसे अलग घर में लेके शिफ्ट हो गया। वो तो सुबह के गए शाम को लौटते थे। पीछे अलीना का जो दिल करता वो करती थी। उमैर भी छोटा था, उसे माँ की भरपूर तवज्जो की ज़रूरत थी। एक सलीकामंद माँ की जो अपने बच्चे की तरबियत सही खतूत पे कर सके, मगर वो भी अलीना ही थी, अपने नाम की एक। उसने इतनी सी उम्र में ही उसे उसके दादा दादी, फुफ्फो चाचू से दूर कर दिया था, और तो और हुसनैन को भी, क्योंकि वो दोबारा उस जंजालपुरे में नहीं रहना चाहती थी। और यही बात थी जिस पर हसनैन और उसके बीच एक खलिश की दीवार हायल हो गई थी, जो रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही थी। क्या हुआ, आज तुम्हारा मूड इतना ख़राब क्यों लग रहा है? कहीं हसनैन भाई से तो लड़ाई नहीं हो गई? आज काफ़ी दिन बाद रिदा उसकी तरफ आई थी। वो उसकी इकलौती और मुखलिस दोस्त थी। जब भी उसकी उतरी रंगत देख के फौरन उसे पेशतर इस्तफसार किया। यार क्या बताऊं, बस मेरा तो ससुराल वालों ने जीना हराम किया हुआ है। भला वो कहाँ ससुराल की बुराई से चूकती थी। सो झट बोली, क्यों, अब क्या करती उन लोगों ने? अब तो तुम अलग रहती हो, और जहाँ तक मुझे इल्म है तुम उनकी तरफ ज़्यादा आती जाती भी नहीं हो, ना हुसनैन और उमैर को वहाँ जाने देती हो। फिर भला क्या बात हुई? रिदा के चेहरे से परेशानी आयान थी। यही तो मसला है कि मैं आने जाने नहीं देती। अगर आने जाने देती तो लड़ाई ही ना होती, मगर मैं क्या करूं? अगर मैंने इन्हें वहाँ ज़्यादा मेलजोल बढ़ाने दिया तो इनकी वालिदा इन्हें मेरे खिलाफ कर देंगी, और वैसे ही मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती वो। हसनैन तो अब बाकायदा मुझसे तल्ख कलामी पे उतर आए हैं। उमैर को इस वीकेंड पर वहाँ भेजने पर मैं कैसे गवारा कर लूँ? अलीना ने कॉफ़ी का मग रिदा की तरफ बढ़ाया, फिर दुख से अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगी। तुम्हें नहीं लगता अलीना कि तुम ज्यादती से काम ले रही हो, जिसे तुम अपने मेके से दूर नहीं रह सकती? बारहा वहाँ आना जाना पसंद करती हो, वहाँ की फिक्र रहती है तुम्हें। इसी तरह वो हुसनैन भाई का घर है, उन्हें उनसे मोहब्बत भी है, वो उनकी फिक्र करते हैं। तुम्हारी वजह से वो अलग तो रह रहे हैं, अब बिल्कुल किनारा कशी तो इख्तियार नहीं कर सकते ना वो। तुम्हें थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारे और उनके बीच दूरियां हाल हो जाएंगी। और अगर तुम उन्हें रोकोगी तब भी वो नहीं रुकेंगे, उल्टा उनकी नज़रों में तुम्हारी वैल्यू ही डाउन होगी, और ये मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी। वो उसका भलाई चाहती थी, अच्छे तरीके से समझाने लगी। कह तो ठीक रही हो, किसी हद तक
तुम ने मेरी परेशानी ख़त्म कर दी है। बिल्कुल, और प्लीज़ थोड़ी बर्दाश्त पैदा करो अपने अंदर। अब मैं चलूँगी, मुझे देर हो रही है। तुम चक्कर लगाना मेरी तरफ 1-2 रोज़ में, फिर मज़ीद तफसील में बात करेंगे। उसका गाल थपथपाते हुए रिदा उठ खड़ी हुई। हाँ क्यों नहीं, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। उसको अलविदा कहने वो दरवाजे तक आई थी, फिर दरवाज़ा लॉक करके टीवी देखने बैठ गई, मगर ज़हन रिदा की बातों में उलझा हुआ था। और फिर ये रिदा की बातों का ही असर था कि वो कब से गायब दमागी से अपनी उंगलियां मरोड़ती गहरी सोच में गुम थी। दरअसल वो सुबह से ही हसनैन के घर लौटने का इंतज़ार कर रही थी, ताकि जल्द अज जल्द अपनी गलती का मदावा कर सके और उनके बीच हाल ये अजनबियत की दीवार और खलिश जल्द अज जल्द ख़त्म हो सके। उसने तो उमैर के और अपने कपड़ों वगैरह की भी पैकिंग कर रखी थी। आज वीकेंड था और वो ये वीकेंड अपने ससुराल में ही गुजारना चाहती थी, सिर्फ और सिर्फ हसनैन के ख़राब मूड की वजह से। जो भी था, वो उसकी नाराज़गी और बेरुखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आ गए आप, इतनी देर कहाँ लगा दिया आपने? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। वो अपनी सोचों में गुम थी। हसनैन की आमद पर जैसे उसकी सोचों का तसलसल टूटा। क्यों भाई, कोई काम था क्या जो आज मेरा इंतज़ार था? उसके लहजे में वही था, बेएतनाई। अलीना का दिल कट के रह गया, मगर इस रूठे सजन को मनाना बहरहाल उसी को था। उसके हाथ से ऑफिस बैग वगैरह लेके वो रूम में रख के आई थी। उमैर बाप की गोद में चढ़ा उससे लाड उठवाने में मसरूफ था। अलीना भी उन दोनों के पास ही सोफे पे बैठ गई। अलीना प्लीज़ जल्दी से उमैर की पैकिंग कर दो और मुझे 1 कप चाय पिला दो, अब मैं जल्दी में निकलूँगा। इससे पहले कि अलीना कुछ कहती, हसनैन खुद ही बोल पड़े। पैकिंग क्यों? उमैर कहाँ जा रहा है अकेले? उसकी हैरत बजा थी। अरे कहीं नहीं, अपनी दादी के घर जा रहा है। क्यों हीरो, तुमने जाना था ना इस वीकेंड पर दादी के यहाँ? उसे जवाब देते हसनैन ने उमैर के गाल चूमे। अपने बाप के फैसले पे उसका दिल खुशी से झूम उठा था। उमैर अकेले कैसे रहेगा वहाँ? आप और मैं नहीं जा रहे क्या? क्या मतलब अकेले कैसे रहेगा? वो उसकी दादी का घर है, तुम फिक्र नहीं करो। तुम्हें वहाँ जाने का नहीं कह रहा मैं, तुम वहाँ कभी नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं और उमैर वहाँ ज़रूर जाएंगे। तुम प्लीज़ सामान पैक कर दो। उसके लबो लहजे की तलखी पे वो गंग रह गई थी। वो तो यहाँ अपनी गलती का मदावा करने को तैयार बैठी थी। वो तो खुद उमैर को वहाँ भेजने पे रजामंद थी, मगर हसनैन उसकी सुनने पे ही तैयार नहीं था। उसने तो पहले ही अपना फैसला सुना दिया। वो कोई सफाई भी ना दे पाई थी। उसे रह रह के अपनी खामोशी पे गुस्सा आ रहा था। क्या था जो वो पहले ही कह देती, मगर अब देर हो चुकी थी। सो वो बेदिली से उमैर का सामान हुसैन के हवाले करने लगी। और फिर उस रोज़ दोपहर में वो उमैर को अपने मैके छोड़कर रिदा के साथ शॉपिंग की गर्ज से एक मशहूर शॉपिंग मॉल आई थी, मगर उसके चेहरे से छलकती बेजारियत और उदासी रिदा से मख्फी न रह सकी थी। जब भी कुछ देर सस्ताने की गर्ज से वो दोनों फूड पॉइंट में आके बैठी, तो रिदा ने पहली फुर्सत में ही उससे पूछा था, क्या बात है, आज इतनी चुप क्यों हो? कोई बात हुई है क्या तुम्हारे और हसनैन भाई के बीच? आज तो शॉपिंग में भी ध्यान नहीं है तुम्हारा। नहीं यार, कोई बात नहीं ऐसी, थकन की वजह से तुम ऐसा महसूस हो रहा होगा। और तुम सुनाओ, सब खैरियत है ना? जूस का सिप लेते हुए उसने बात डाली थी। हाँ सब खैरियत है। वो खुश दिली से मुस्कुराई थी। मुस्कुराते मुस्कुराते उसकी नज़र सामने के मंजर पर पड़ी थी और उसकी पलकें झपकना भूल गई थी। अलीना ने भी उसके ताकुब में नजरें दौड़ाई तो उसे अपनी बसारत पे शुबा सा हुआ। उसके इर्द गिर्द कहीं कोई धमाका सा हुआ था और अगले ही पल वो नहायत तेजी से उठ खड़ी हुई। सामने और कोई नहीं, उसका मन चाहा हम सफर हसनैन उसके वहां होने से बेखबर किसी अनजान लड़की के साथ बातों में मसरूफ था। क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो तुम? बैठ जाओ चुपचाप, बल्कि चलो यहाँ से। उसे हसनैन की तरफ जाते देख के नहायत तेजी से रिदा ने उसका हाथ खींचा था, फिर उसका हाथ पकड़ के वो तेजी से बाहर ले आई थी। क्यों रोका तुम्हें मुझे रिदा? आखिर हसनैन ऐसा क्यों कर सकते हैं? वो लड़की कौन है, क्या कर रही है उनके साथ, वो भी उनके ऑफिस टाइम में? कम से कम पूछने तो देती तुम मुझे। गाड़ी में बैठते ही वो रिदा पे फट पड़ी थी। पागल हो गई हो क्या? वहां तमाशा खड़ा करने से क्या होना था अलीना, उल्टा तुम्हारी ही बेइज्जती होनी थी। और जिस तरह हसनैन भाई उस लड़की से बातें कर रहे थे, उन दोनों में गहरी वाकफियत लग रही थी। और जरूरी नहीं
जैसा तुम सोच रही हो या मैं सोच रही हूँ, दर हकीकत वैसा ही हो। ये महज हमारी गलत फहमी भी हो सकती है। और प्लीज़ बुरा मत मानना, मगर जिस तरह तुम्हारा रवैया रहा है, तुम्हारी हरकतों से एक ना एक दिन ऐसा होना ही था। गाड़ी स्टार्ट करते हुए रिदा ने उसे समझाना चाहा। क्या मतलब मेरी हरकतें? ऐसा क्या कर दिया मैंने? जवाब दो। उसका मीटर फौरन घूमा था। हाँ, तो ये तुम्हारी ही गलती है। हर इंसान को एक सलीकामंद और समझदार बीवी की ज़रूरत होती है, और तुम समझदार तो बहुत हो, मगर सलीकामंद नहीं। सारा घर तुम्हारी बेपरवाही का मुंह बोलता सबूत है। यहाँ तक कि उमैर भी बेतौजही का शिकार है। अगर तुम ससुराल में रहती तो शायद तुम कुछ ना कुछ सीख लेती अपनी सास से। यहाँ तक कि अगर हसनैन भाई से भी कोई बेपरवाही या गलती होती तो उनके माँ बाप उन्हें समझाते और सब सही हो जाता। कम से कम उन पर प्रेशर तो होता ना। मगर तुमने घर के काम काज से जान छुड़ाने के लिए, बेजार रोक टोक और पाबंदियों से बचने के लिए ससुराल से अलहदगी इख्तियार कर ली। ना सिर्फ अलहदगी इख्तियार कर ली, बल्कि नफरत की जंग का आगाज कर दिया। और फिर मर्द तो आखिर मर्द होता है ना, उन पर भी प्रेशर खत्म हो गया। कौन सा उनके माँ बाप उनके घर बैठे हुए हैं उनसे पूछ गिछ करने के लिए? बेवकूफ़ लड़की, तुमने सरासर अपना ही नुकसान किया है, और अब नतीजा खुद देख लो। तुमने जितनी नफरत अपने शौहर के दिल में उसकी माँ और घर वालों के खिलाफ डालने की कोशिश की, उस सब ने उन्हें तुमसे ही बदजन कर दिया है। रिदा ने अपनी दोस्त को आना दिखाया तो वो भी खुद से नजरें चुराने पे मजबूर हो गई। दिल की बुरी नहीं थी, बेपरवाह जरूर थी, आज़ाद ख्याल थी, मगर बहरहाल एक मशरकी बीवी तो थी। उसने हसनैन के सिवा कभी किसी का सोचा भी नहीं था। उसके लिए तो ये ख्याल ही सुहाने रूह था। आंसू थे कि पलकों के बाढ़ तोड़कर मुतवातिर बह रहे थे। रिदा ने गाड़ी उसकी अम्मी के घर के सामने रोकी और उसके हाथ फोले से दबाए। सब ठीक हो जाएगा, तुम बस अपनी गलती सुधार लो। आज जो कुछ हमारे सामने आया, शायद इसमें हमारी ही भलाई पोशीदा थी। अपनी तवज्जो से, मोहब्बत से, सलीका मंदी से हसनैन भाई को अपना गर्विदा कर लो। वो तुम्हारे शौहर हैं पगली, तुम्हारे बेटे के बाप हैं, तुमसे अलग नहीं हो सकते। जब तुम उन पर तवज्जो नहीं दोगी तो फिर कोई और उनको अपना बनाने की कोशिश तो करेगा ना। अच्छा सोचो, खुद से मत सब कुछ फर्ज करने लग जाओ। और प्लीज़ इस सब का जिक्र हसनैन भाई से मत करना। वो हमेशा उसका भला ही चाहती थी, और अब तो उसकी बातों पर अलीना का दिल भी ईमान ले आया था। और एक पुख्ता अहद तो उसने अपने दिल से किया था अभी अभी, और इस अहद पर उसे ताउम्र कायम रहना था। रिदा ने कहा था ना, कम से कम तुम्हारी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए अलीना कि कल को तुम्हें पछताना पड़े कि काश मैंने ये काम दुरुस्त किया होता। इसलिए पहले अपनी तमाम गलतियां सुधारो, फिर अगले के ऊपर उंगली उठाना। उसने अपनी गलतियां सुधारने का अहद कर लिया था। इसीलिए जब शाम गए, हसनैन थका हारा ऑफिस से घर लौटा तो एक खुशगवार हैरत ने उसका अहाता कर लिया। निखरा निखरा साफ सुथरा घर, सलीके से मुज़य्यन हर चीज़ रहने वाले के ज़ौक़ और नफासत का पता देती थी। बेसाख्ता मुस्कुराहट उसके चेहरे पे दर आई थी, वरना रोज़ जब वो इस वक्त घर लौटता था, हर चीज़ फैली हुई उसका मुंह चढ़ा रही होती थी। सामने टीवी लाउंज में उमर बैठा अपना होमवर्क कर रहा था, जबकि अलीना उसके पास बैठी मुस्कुरा रही थी। क्या बात है, मासी वगैरह चेंज कर लिया है क्या तुमने? मैंने तो पहले ही कहा था वो सही सफाई नहीं करती। मासी चेंज तो नहीं की, अलबत्ता उसकी छुट्टी ज़रूर कर दी है। जब मैं हूँ तो फिर मासी की क्या ज़रूरत है? मुस्कुराते हुए उसने पानी हसनैन को थमाया था। जो फैसला आज उसके दिल ने किया था, बहरहाल उस पर कायम रहना था। वाह जनाब, मैंने तो पहले ही तुम्हें कहा था कि इन मासियों वगैरह के चक्कर में ना पड़ो। पानी का गिलास खाली करके उसे थमा के अब वो उमर को गोद में लिए बैठा था। आपसे एक और बात करना थी मुझे, उंगलियां मरोड़ते हुए उसने तमहीद बांधी थी। आज हसनैन का मूड उसे काफ़ी खुशगवार लग रहा था, और वो उससे बात भी काफ़ी अच्छे से कर रहा था, वरना उमर को दादी के यहाँ जाने पर मना करने पर काफ़ी दिनों से उससे लिए दिए अंदाज में ही बात कर रहा था। क्या बात है, बोलो। उमर को सोफे पे बिठा के अब वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो था। अलीना भी उसके बराबर में ही आके बैठ गई। वो ये मैं कहना चाह रही थी कि हम वापस अपने घर चले। ये हमारा ही तो घर है, फिर कौन से घर की बात कर रही हो तुम?
उसने नासमझी से अलीना की तरफ देखा। मेरा मतलब है आपके घर, हमारे अपने घर, ये तो किराए का घर है ना, उस घर जहाँ आपके वालिदैन रहते हैं, हमारे बुजुर्ग उमर के दादा दादी रहते हैं। उसने नजरें उठा के एक नज़र हुसनैन के चेहरे पर आने वाली हैरत और खुशी को देखना चाहा। आज खैरियत तो है ना बेगम साहिबा? आप तो हमें हैरान करने के दर पे हैं, कहीं ये मजाक तो नहीं? उसका चेहरा खुशी से टिमटिमा उठा था। 100% सच है, मजाक नहीं। प्लीज़ चले ना, मैं अम्मी अब्बू से अपने किए की माफ़ी मांग लूँगी। हम हमेशा वहीं रहेंगे। वादा करती हूँ अब मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगी। मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। कोशिश करूँगी कि काम भी हमेशा वक्त पे पूरा करूँ। उसके हाथ पर अलीना ने होले से अपना हाथ रखा था। उमर अपने खेल में मसरूफ़ था। बहुत अच्छी बात है, तुम्हें कम से कम अपनी गलती का एहसास हो गया ना, यही बहुत है। मुझे पता है तुम दिल से शर्मिंदा हो, और ये भी पता है कि तुमने मुझे आज उस लड़की के साथ देख लिया था, वरना तो किस्मत हम पर इतनी मेहरबान ना होती जितनी आज है। शरारत आमेज लहजे में हसनैन ने कहा था। अलीना ने बेसाख्ता अपना हाथ खींचा था। क्या मतलब? आप जानते थे? क्या था वो सब? हाँ बोले फिर। वो फौरन ही लड़ने पे आमादा हो गए। रिलैक्स रिलैक्स, बताता हूँ सब, लड़ो मत। मुझे पता था तुम ऐसे ही सुधरोगी जब तक तुम्हें सुधारा ना जाए, वरना तुम तो लगी रहती अपने कामों में। और घर का क्या होता? ना सफाई सुथराई, ना कोई सलीका। फिर कल को कोई और मेरा दिल चुरा के ले जाती तो तुम क्या करती? इसीलिए तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रिदा और मेरे बेस्ट फ्रेंड अजीम की वाइफ, जो कि दरअसल तुम्हारी ही दोस्त रिदा है, उसने मुझे मशवरा दिया ये सब करने का कि तुम जिस खुमार में हो, तुम्हें एक दफ़ा झटका मिलना बहुत ज़रूरी है। उस दिन अम्मी के यहाँ जाने पर गुस्सा भी मैंने जानबूझ के किया था, ताकि तुम्हें कुछ तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो सके कि अगर तुम यूं ही अपनी मस्ती में जीती रही ना, तो मैं तुमसे दूर भी जा सकता हूँ। और वो लड़की दरअसल मेरी ऑफिस कॉलीग थी, जिसे मैं बड़ी मुश्किल से रिदा के कहने पे लंच पर लेके गया था, ताकि तुम देख सको। और देखो ना, इस सब का फ़ायदा भी तो कितना हुआ है। वो मुसलसल शरारत से मुस्कुराता उस पर हैरतों के पहाड़ तोड़ रहा था। मैं छोड़ूंगी नहीं इस रिदा को। क्या ऐसे नहीं समझा सकती थी मुझे सीधे से? वो एकदम गुस्से में उठ खड़ी हुई। अरे रुको तो, उससे बाद में लड़ लेना। और लड़ोगे क्यों? वो तुम्हारी मुखलिस दोस्त है, वरना तो आजकल कोई किसी की परवाह नहीं करता। अब तुम ना ज़रा जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी अम्मी के यहाँ चलते हैं और उन्हें यह खुशखबरी सुनाते हैं। चलोगी ना? हसनैन ने उसकी जानिब मोहब्बत से हाथ बढ़ाया था। हाँ हाँ ज़रूर, वही तो मेरा असल घर है, जहाँ मेरे माँ बाप रहते हैं, आपके माँ बाप रहते हैं। उसने मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देखकर उसका हाथ थाम लिया था। और देखो रिदा, काम की कोई बात नहीं, काम के लिए तो कामवालियाँ भी रखी जाती हैं, लेकिन जो असल घरेलू औरत होती है और जिसे अपना घर अपना लगता है और उसे घर बनाने का शौक होता है, वही काम वालियों से भी काम लेना जानती है। वरना देखो, हमारा घर कैसा उजड़ा हुआ लगता था, और आज तुम्हारी थोड़ी सी तवज्जो से कैसे चमक रहा है। हर शय अपनी जगह पर है। घर में एक अलग ही रौनक और रूहानियत है, और ये सब एक घर वाली औरत ही कर सकती है, काम वाली बांसी नहीं। हसनैन ने मोहब्बत से उसके शानों पर अपने हाथ रखते हुए कहा था। और अलीना को आज हसनैन की तमाम बातें सच्ची और भली मालूम हो रही थी, और अपनी कल की गलतियों और कोताहियों पर उसे नदामत भी थी। दोनों की जिंदगी अब पुरसकून हो गई थी। फिजा में गूंजते दोनों के कहकों में उनकी दिली खुशी शामिल थी। अलीना ने मुस्कुराते हुए दिल ही दिल में रिदा का और उस पाक ज़ात का शुक्र अदा किया था, जिसकी बदौलत आज उसका आशियाना संवर गया था, वरना वो तो नादानी में अपना सब कुछ हार बैठती। उसे एक मुखलिस शौहर मिल गया था, एक मुखलिस दोस्त मिल गई थी। मगर हर किसी की किस्मत इस तरह अच्छी नहीं होती। अगर वो सब मजाक नहीं सच होता, तो इससे आगे की सोच ही उसने इस पर पहरे बिठा दिए थे। आज उसके दिल में फूटती खलूस की चांदनी ने उसकी जिंदगी को रोशन कर दिया था, और उसके दिल के अंदर ढेरों ढेर सुकून भर दिया था, जो कि अब उसके चेहरे से भी जाहिर हो रहा था, और जो अब तमाम उम्र उसका हम राह भी रहना था। वो सुकून
جو کہ صرف محبت، اعتبار اور خلوص کا مرہون منت ہوتا ہے، اور وہ خلوص جس سے عموماً آج کل کے ازدواجی زندگی گزارنے والے محروم ہیں۔ تو علینا اور حسنین کی یہ کہانی ہر شادی شدہ زندگی گزارنے والے کے لیے ایک سبق ہے کہ جو جہاں غلط ہے وہاں ضد یا پھر بے وجہ کے لڑائی جھگڑے میں الجھنے کی بجائے پہلے اپنی اصلاح کرے، پھر دوسرے کی طرف انگلی اٹھائے۔ یقین مانیے، تھوڑی سی کوشش اور خلوص آپ کے گھر کو دنیا میں جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔